Okay, my dear students, we will continue with the topic chemical bonding. Chemical bonding, we had seen in the previous class how to get the Lewis dot structural formula dot and dash बोलते हैं उसे dash यानी जो single bond दिखता है अपने को Lewis dot and dash structure as well as how to get the formal charges on an atom. Formal charge का calculation. तो एक बार फॉर्मूला बोलेंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन का फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ lone pair of electrons minus bond pair electron divided by 2. So this is the formula which we are using in order to get formal charges. Okay, so this part is, I think, over. We have discussed it very well with all the formula and many examples. Now we will move to the next theory. अभी तक हम कौन सी theory का discussion कर रहे थे? Octet theory. और octet theory का discussion कर रहे थे. We had seen drawbacks of octet theory also. Limitations or drawbacks of octet theory. And in limitations and drawback of octet theory, हमने first क्योंकि इसके limitation को overcome करने के लिए next theory आने वाली है तो पहले एक बार limitation की बात कर लें क्या limitation था octet theory fails to explain formation stability and reactivity of those molecules which have incomplete octet. Similarly, it also fails to explain for expanded octet. Then third, हमने क्या पढ़ा था उसमें? Yes, molecules with odd number of electrons, no explanation. ये सब ठीक हो गया. इसके बाद का जो drawback है, वो क्या लिखा है? That in short, अगर मैं बोलूँ exact वो word तो कहेंगे? Yes, difference in energies before and after the formation of molecule, plus the shape and geometry of the molecule. ऐसा कुछ हमारे पास लिखा हुआ है. तो next theory जो आ गई, next theory VSEPR, ये theory हमें पढ़ना है. VSEPR, valence electron pair repulsion theory. Now, what is the advantage of this theory, and what, or rather, what we are talking about this theory? This theory explains the shape of molecule which was not explained by octet theory. Octet theory में तो सिर्फ इतना बोला कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रहने चाहिए जो नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा. Atom at the time of bond formation can gain, lose or share their electrons in order to complete their octet in valence shell. No information, no discussion about the shape of molecule. Okay, तो ये VSEPR theory ने shape of molecule को explain किया. इनिशियल स्टेज में पॉवेल एंड सिडविक ये दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने कुछ बतलाया था कि इलेक्ट्रॉन्स जब एक ही मॉलिक्यूल में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनका रिपल्शन होता है. लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. जैसे हम अगर देख ले एक सिंपल अभी को हम यहाँ लिखते हैं जैसे PCl5. PCl5 फॉस्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है. करेक्ट है. तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स
phosphorus के valence shell में है, naturally they are going to repel each other. When they are going to repel each other, अब रिपल्शन तो होगा, लेकिन रिपल्शन इतना भी नहीं होगा कि ये मॉलिक्यूल पूरा क्रैश हो जाए, ये मॉलिक्यूल पूरा ब्रेक हो जाए, उतना ही रिपेल करेंगे कि उसका रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। करेक्ट है, रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं ओजोन का, O3, ठीक है। अब ओजोन में हम क्या देखते हैं कि एक डबल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, O3। अब इसमें लोन पेयर कितने कहां पर आ जाएंगे? जो सिंगल रहेगा उस पे 3 लोन पेयर आना चाहिए, जो डबल रहेगा उस पे 2 लोन पेयर आना चाहिए। This is what the structure of ozone we get, and more what we see, जहां पर सिंगल बॉन्ड है वो नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन usually double bond बनाता है, and in 2 bonds it creates. If 3 bonds, then positive charge. अगर फॉर्मल चार्ज जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑक्सीजन पे हमें दिखेगा पॉजिटिव चार्ज। ये ओजोन का स्ट्रक्चर, ओजोन का स्ट्रक्चर है ना, सही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लीजिए आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, बराबर है उसमें, यस, ओजोन O3। अब ये वाले मॉलिक्यूल में VSEPR ने क्या कहा कि these इलेक्ट्रॉन पेयर, ये लोन पेयर है ना, और बॉन्ड पेयर का कहां पर आ गया है? ये बॉन्ड पेयर, इसे हम कहते हैं ना, ये बॉन्ड पेयर है। या तो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम या फिर बॉन्ड बनाते हैं, दोनों एक साथ नहीं करते। जस्ट आपके समझने के लिए मैं ये 2 पॉइंटर को हाईलाइट कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बॉन्ड ही है ना। जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ H सिंगल बॉन्ड H, या फिर मैं लिखूंगा H पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H। Either I represent by a single bond or I represent by a pair of electron. That means a single covalent bond is equivalent to one pair of electron. तो मैं दोनों नहीं दिखा सकता यहाँ पर, लेकिन just to count them मैं यहाँ पर इसके टर्मिनल्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड पेयर्स हो गए, बाकी के लोन पेयर तो आपके समझ में आ गया। अब VSEPR थ्योरी क्या बोलता है कि electron pairs, they arrange themselves within molecule in such a way that there should be minimum repulsion and maximum stability. पर्पस क्या है कि हमने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था वो स्टेबल ड्रॉ किया। अब वो स्टेबल स्ट्रक्चर का शेप, ओजोन का ऐसा शेप क्यों दिया, ओजोन को ऐसा क्यों नहीं लिख लिया, ओजोन को ऐसा लिख सकते थे। Why we have given this inverted V shape? We call it as inverted V shape geometry, और करेक्ट। तो inverted V shape क्यों हुआ? वो एक एक पूरा ऐसा हॉरिजॉन्टल इसमें क्यों नहीं, ऐसा लिख सकते थे। चलो जैसे यहाँ पर लिख दिया कि ये डबल बॉन्ड है, 2 पेयर यहाँ लगा दिए, 3 लोन पेयर ये वाले ऑक्सीजन पे आ गया, इसमें 1 लोन पेयर विद पॉजिटिव चार्ज। सेंट्रल वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, 2 4 6 एंड 8, 3 बॉन्ड बनाया पॉजिटिव चार्ज, इसमें सिंगल बॉन्ड बनाया नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड है 2 लोन पेयर, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका। तो ऐसा हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं हुआ? Why is inverted V shape? This is the wrong representation. This is the correct representation. It is because of these lone pair, bond pair,
they keep on repelling each other. इसीलिए इसका नाम क्या बोला है? वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी। तो जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दे रिपेल ईच अदर। तो इसके पोस्टुलेट्स आपके टेक्स्ट बुक में तो बहुत सारे हैं, लेकिन मोर और लेस उनका समरी जो बनेगा वो यही बनता है कि इन अ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर they repel each other. As all carry negative charge, they keep on repelling each other in such a way that the repulsion should be minimum. जैसे अब दोनों पास में तो रिपल्शन ज्यादा होगा, देखेंगे आप यहाँ पर सब लोग, है ना? ये अगर यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये अभी पास में दो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपेल करें और पास में लाएंगे, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होके कितना दूर जाएंगे कि वो बाहर चले जाए, पूरा मॉलिक्यूल को तोड़ के निकल जाए? नहीं, वो रिपेल करेंगे इतना कि अब इसके बाद इनमें रिपल्शन है। जैसे आप मैग्नेट में देखते हैं ना कि अपन आयरन फिलिंग्स के पास में मैग्नेट लेके आते हैं, एक डिस्टेंस तक के लाते हैं, और जैसे डिस्टेंस क्लोज किया पूरे आयरन पार्टिकल अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसी को दूर रखा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो मैग्नेट अपनी जगह, आयरन पार्टिकल्स अपने जगह। नो अट्रैक्शन, नो रिपल्शन। वैसा ही ये जो दो इलेक्ट्रॉन पेयर है, दे रिपेल themselves, repel each other in such a way that the repulsion further is minimized and stability will be maximum. क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होगा तो अनस्टेबिलिटी है ना। हम लोग हमारे समाज में भी देखते हैं, सोसाइटी में भी देखते हैं कि किसी सोसाइटी में अगर रिपल्शन ज्यादा हो गया आपस में तो वो अनस्टेबल सोसाइटी हो जाती है। जहां रिपल्शन नहीं होता है वो काम एंड क्वाइट सोसाइटी अपने काम करते रहती है। तो ऐसा ही यहाँ पर है। तो ओजोन का ये स्ट्रक्चर हमको क्यों मिला? बिकॉज ऑफ रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो जैसे मैं पहला रूल इसमें से पढ़ लेता हूँ, आप भी देखेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज themselves in such a way that repulsion between them is minimum. इसमें एक पॉइंट बना दिया। दूसरा रूल क्या बोलता है? The molecule acquires minimum energy and maximum stability. स्टेबिलिटी जब मैक्सिमम रहती है तो नेचुरली एनर्जी उसकी मिनिमम होगी। थर्ड, lone pair of electron also contribute in determining the shape of the molecule. It is not only that the bond pair of electron will provide the shape of molecule, it is lone pair of electron also contribute towards the shape of the molecule. करेक्ट है ना? नेक्स्ट पॉइंट, अब उसने क्या बोला है कि देयर शुड बी अ रिपल्शन बिटवीन बॉन्ड पेयर। मैं बीपी लिख रहा हूं, यानी बॉन्ड पेयर डैश बॉन्ड पेयर, ये इनका रिपल्शन, बॉन्ड पेयर। नेक्स्ट रिपल्शन क्या होगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। और एक रिपल्शन कौन सा पॉसिबल होगा? लोन पेयर। Because in a single atom we have number of lone pairs. जैसे ये ऑक्सीजन नंबर 1 है और ये 2 है और ये 3 है, तो सब पे डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर है। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर है, तो वो भी रिपेल करेंगे। सेकंड वाले पे 2 लोन पेयर है, ये भी रिपेल करेंगे। So 3 kind of repulsions we observe in a molecule, and these repulsive forces are responsible for providing the shape of a molecule. Now, in this repulsion, the trend of repulsion is lone pair repulsion. The trend is
lone pair repulsion is greater than lone pair bond pair repulsion, which is greater than bond pair repulsion. So why this lone pair repulsion is far greater than bond pair repulsion? क्योंकि लोन पेयर पे का रिपल्शन क्यों ज्यादा है? बोल सकेंगे इसका आंसर? बहुत सिंपल है। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में डिफरेंस तो हमको समझता है। लोन पेयर पे इन्फ्लुएंस किसका रहेगा? सिंगल न्यूक्लियस का। जैसे एटम नंबर 1 में 3 लोन पेयर है, ये 3 लोन पेयर पे एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस है। कौन सा? एटम नंबर 1 की न्यूक्लियस का। यानी एक न्यूक्लियस 3 पेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर। और बॉन्ड पेयर का कम क्यों हो जा रहा है? क्योंकि बॉन्ड पेयर पे दोनों न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो उसको न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्ट करके रखेगा। तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक ही न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होने से उसका रिपल्शन जो रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। और जो बॉन्ड पेयर है उसका रिपल्शन सबसे कम रहेगा, बिकॉज इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस, टू पॉजिटिव चार्जेस। ऐसा ही है ना, वो बोलते भी है, जैसे कि अब आप लोगों से बात करूं अगर मैं, तो जो अनमैरिड बॉयज होते हैं वो ऐसे घूमते रहते रात दिन, इन्फ्लुएंस सिर्फ एक ही न्यूक्लियस का रहता, मदर का या फादर का, जो भी एक रहेगा। लेकिन आफ्टर मैरिज दो न्यूक्लियस उस पर अटैक करती है। दो न्यूक्लियस का, वाइफ भी ठोकती है और मदर भी ठोकती है उसको। अरे आप लेट आ गए, अरे कहाँ रुक गए थे? मम्मी बोलती बेटा आज बहुत देर कर दी आने में। तरीका दोनों का अलग अलग होता है बोलने का, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है ना? तो लोन पेयर जब तक मैरिज नहीं है आप एकदम खुले हैं, इन्फ्लुएंस कम है। लेकिन मैरिज हो गई तो इन्फ्लुएंस दो न्यूक्लियस का आप पे काम करने लगता है। तो इसीलिए बेटा ऐसा होता है, मैं बॉयज की बातें कर रहा हूँ ना। हाँ, तो ये इस तरह से लोन पेयर का जो रिपल्सिव फोर्स है, जो स्ट्रेंथ है, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लोन पेयर इज हायर एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर, क्योंकि उसपे एक ही न्यूक्लियस का इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज अटैक कर रहा है लोन पेयर पे, और बॉन्ड पेयर पे दो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज अटैक कर रहा है, तो बॉन्ड पेयर कम हो जाता है। तो ओवरऑल बीएससीपीआर थ्योरी ने क्या बताया है हमको कि shape of molecule is provided by the repulsion of electron pairs including lone pair of electrons, and these repulsions should be this pair of electron move in such a way that repulsion should be minimum. जैसे मैं फिर से ओजोन के ये दोनों स्ट्रक्चर पे आ जाता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है कि सब एक ही लाइन में आ जाए हैं, सभी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलाइन हो रही है, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। और ये जो हमने इन्वर्टेड वी शेप लिया, इसमें इनकी रिपल्शन कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। So stability is more and repulsion is minimum with minimum energy also. क्योंकि जितना कम रिपल्शन होगा उतनी कम एनर्जी रहेगी, ज्यादा रिपल्शन होगा ज्यादा एनर्जी रहेगी। और जो भी मॉलिक्यूल में ज्यादा एनर्जी वो क्या देता है फिर हमको, है ना, वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, ज्यादा एनर्जी। तो अब आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखेंगे तो इन्हीं अब जो मॉलिक्यूल दो टेबल बने, एक में विदाउट लोन पेयर है और दूसरे इसमें विद लोन पेयर। अगर लोन पेयर मॉलिक्यूल में नहीं है तो जो ज्योमेट्री है वो रेगुलर काइंड ऑफ ज्योमेट्री मिलती है।
और अगर लोन पेयर आ गया तो लोन पेयर आके क्या करता है, वो ज्योमेट्री को डिस्टर्ब करता है, जो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री है उसको डिस्टर्ब करता है। अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिए कि ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल किसी एक थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं होगा। आगे मैं और 2 थ्योरी 3 थ्योरी पढ़ाऊंगा। अभी बीएससी पीआर हो जाएगा, फिर उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। हाइब्रिडाइजेशन के बाद में उसके पहले लगे तो एक बात है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीबीटी जिसको हम बोलते हैं। तो एक थ्योरी इसके बाद पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी मॉट करके भी एक थ्योरी है। एमओटी नहीं बोलेगा, है ना, एमओटी नहीं बोलेगा, एमओटी बोलेगा, है ना। तो मॉट बोलते हैं उसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी चल रही है अभी। अभी उसके बाद मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी, इतना सब पढ़ेंगे तब शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल हमको परफेक्ट हर एक मॉलिक्यूल का निकालते आएगा। तो आज बीएससीपीआर से हमको सिर्फ एक आइडिया मिलती है कि जो भी मॉलिक्यूल रहता है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये सारे इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से रिपेल करते हैं या इस तरह से अरेंज होते हैं। ऐसा रिपेल भी नहीं बोलूंगा मैं, कि मॉलिक्यूल में एटम्स, मॉलिक्यूल में एटम्स इस तरह अरेंज होते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन पेयर के रिपल्शंस मिनिमम हो जाए और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाए। दिस इज बीएससी पीआर थिंकिंग। ओके, अब इसमें जैसे लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे तो 3-4 ज्योमेट्री अपने पास में है जो फिक्स ज्योमेट्री बोलते हैं जिसको। जैसे एक तो लीनियर ज्योमेट्री है, हॉरिजॉन्टल, देन ट्राइगोनल, देन टेट्राहेड्रल, देन टेट्राहेड्रल, देन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसको समझेंगे हम लोग, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होता है कि we can have two pyramids joined to each other through the base and one is octahedral। ये बेटा बेसिक शेप ऑफ मॉलिक्यूल है। ये कैसे है, बेसिक लीनियर। अभी ये देखते हैं लीनियर, डायगोनल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ट्राइगोनल ज्योमेट्री ड्रॉ करनी है तो ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। ट्राइगोनल ज्योमेट्री, ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो लीनियर समझा, ट्राइगोनल समझा, टेट्राहेड्रल हमने आपको मीथेन की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बताया था। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मीथेन की। फिर आता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल यानी कुछ इस तरह से, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल कैसे दिख रहे हैं, कैन यू गेस? बाइपिरामिडल एक पिरामिड ऐसा दिख रहा है आपको? वन टू थ्री फोर, यहाँ तक है पिरामिड। ये ऊपर का टॉप पकड़ लेगा और उससे 4 पॉइंट को मिला देगा। समझे क्या भाषा मेरी? सिंपल तरीके से समझना है तो ट्राइगोनल, ये ट्राइगोनल है, ठीक, ये न्यूक्लियस सेंटर। ट्राइगोनल का एग्जांपल क्या है लावण्य? BF5 है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं,
PCl5 है ना, तो ये फास्फोरस एट द सेंटर, ये 5 क्लोरीन, यहाँ PCl5 भी हमने ड्रॉ करके रखे थे, उसी को मिटा के किया। अब इसमें से पिरामिड बना लो ना बेटा, देखो ध्यान से पिरामिड, ये ऊपर वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा सा टेपरिंग रहता है ना ऐसा, तो वो पिरामिड जैसा बनता है। अच्छा ठीक ठीक, हाँ फिर से बना लेते हैं, कोई इशू नहीं, अगर anybody is facing some any kind of problem, he have to draw again। फास्फोरस सेंटर में टाइम है क्या अभी अपने पास, बहुत टाइम है ना, ये 5Cl, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखिए इसको ऐसा ज्वाइन करने का है क्या पिरामिड, यस सर, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है पिरामिड, ऐसा ही नीचे भी ड्रॉ करने का है, सीएल अगर इधर करते हैं वो क्या है, दो पिरामिड के बेस ज्वाइन हो जा रहे हैं, इसीलिए उसको हम बाई पिरामिड लेते हैं। और नेक्स्ट क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल में भी वैसा ही है कि दो पिरामिड को ज्वाइन करें तो ऑक्टा बनेगा, पिरामिड इज हैविंग फोर, एक पिरामिड उसके नीचे दूसरा पिरामिड, तो ये 8 हो गए, 8 हो गए ना, 8 पॉइंट हो गए ज्वाइन हो गए, तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। तो जैसे ये बना, इसी को आप ऑक्टाहेड्रल कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इसके बीच में ट्रायंगुलर है, इसीलिए इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिड, सिर्फ बाई पिरामिड बनाएंगे हम, सिर्फ बाई, थोड़ा डिफिकल्ट है धीरे धीरे बनाना, फिर भी मैं कोशिश करके ये एक पिरामिड, इसी के नीचे दूसरा पिरामिड रहेगा जो इसी बेस को यूज करेगा, उसी बेस को यूज करेगा। तो अगर ये ब्लैक से आ गया पहला वाला, तो रेड वाला देखो अब ओवरलैप होने वाला दिख रहा है, ये और इसके बीच में ये, यहां से तो ऐसा आना चाहिए, ये देखो नीचे में पिरामिड दिख रहा है, ये नहीं यहाँ से, ये सेंटर आ गया इसका, ये पिरामिड बना, इसको दबा दिया, एक ये पिरामिड दिख रहा, ये दबा दिया तो पिरामिड, ये दबा दिया तो पिरामिड, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है। तो if there is no lone pair, then we get a regular geometry, we call it as a regular geometry of shape, regular। और इसी में एक लोन पेयर बना हुआ, लोन पेयर आ गया, अपन ने इसको दोनों डिस्कस किया, तो रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी मिलने वाली है, लीनियर, ट्राइगोनल, टेट्राहाइड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल। और इसमें से अगर हमने लोन पेयर इंट्रोड्यूस कर दिया तो वो ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहलाएगी, कि लोन पेयर आने से ज्यादा पावरफुल रिपल्शन होगा और वो ज्योमेट्री को डिस्टर्ब कर देगा, वी कॉल इट एज डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री। तो लोन पेयर आने से, अब जैसे आप SO2 मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री देखो, वाटर H2O,
तो H2O की भी ज्योमेट्री ओजोन के जैसे होगी. It is inverted V-shaped geometry with two lone pair on oxygen, and it shows inverted V-shaped geometry. और इसका बॉन्ड एंगल जो रहेगा 104 डिग्री to 105 डिग्री. आपको पता है डिग्री जैसे रेगुलर टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री और इसका बॉन्ड एंगल आपको पता होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स. 109 डिग्री 28 मिनट्स. तो इसका जो शेप बनेगा उसका जो बॉन्ड एंगल आएगा वो 104 to 105 डिग्री आता है. इसको हम डिटेल पढ़ेंगे अभी. मैंने कहा ना कोई भी एक थ्योरी इसको टोटल एक्सप्लेन नहीं कर सकती है. दिस इज वन ऑफ द थ्योरी टू गेट टू द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल. ओके, तो बेटा आज के दिन यहीं पर हम रुकते हैं. कल संडे है, कल क्लास नहीं होगा. हम मंडे को मिलेंगे और थोड़ा ज्यादा डिस्कशन करेंगे. और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप 11th क्लास के टेक्स्ट बुक में से ये शेप के जो टेबल दिए हुए हैं उसे आप पढ़ लेंगे. अपने स्टूडेंट तो सब ज्वाइन होंगे. फटाफट मैसेज कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को जो ज्वाइन नहीं हो रहे, क्योंकि मैं फिर इसके बाद लोड नहीं करूंगा. क्योंकि ये क्या हो रहा है, लोड करने के चक्कर में आप लोग से ज्वाइन नहीं करते टाइम टू टाइम. अभी मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा, बिकॉज इट नीड्स टू बी एक्सप्लेन